अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मन्नान जाबरी। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। एयर इंडिया तैयारा हादसे में अब तक 274 लोगों की मौत की तस्दीक हो चुकी। ब्लैक बॉक्स से हादसे की वजूहात का पता चलाने में मिलेगी मदद, वजीर शहरी हवाबाजी का बयान। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन से मजीद 9 मरीजों की मौत। वायरस से अमवात की जुमला तादाद 87 हो गई। माहिरीन ने एहतियात पर दिया जोर। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे अहमदाबाद में तैयारा हादसे में जख्मी अफराद और हलाक होने वालों के अफराद खानदान से कर रहे हैं मुलाकात। हादसे के मुकाम का भी करेंगे दौरा। राजा रघुवंशी कत्ल केस की तफ्तीश में आई तेजी। एसआईटी ने मरकजी मुलजिम सोनम समेत 5 मुलजिमों से 25 घंटे तवील पूछताछ की। और ईरान ने इसराइल पर दर्जनों मिसाइल दाग दिए, 3 इसराइली हलाक, लगभग 60 जख्मी। तल अवीव में खौफ और दहशत का माहौल। हेडलाइंस के बाद अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। एयर इंडिया तैयारा हादसे में मरने वालों की तादाद में इजाफा हो गया है। ताज़ा खबर के मुताबिक अब तक 274 अफराद की मौत की तस्दीक हो चुकी है। दरअसल अहमदाबाद में हादसे का शिकार मलबे से जुमे को ब्लैक बॉक्स और 29 दीगर नाशों के बाकियात बरामद किए गए। इसके साथ ही ये हिंदुस्तान की हवाबाजी की तारीख का बदतरीन हादसा बन चुका है, जिसमें 274 अफराद की मौत हुई है। तकरीबन 28 घंटे बाद फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स, जिसमें फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड शामिल होता है, बीजे मेडिकल कॉलेज के मेस की छत से बरामद किया गया। इसी दौरान वजीर शहरी हवाबाजी राम मोहन नायडू ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी तस्दीक करते हुए कहा कि ये ब्लैक बॉक्स हादसे की वजूहात की जांच में अहम किरदार अदा करेगा। उन्होंने कहा कि आला सतह की कमेटी 3 महीने में अपनी जांच रिपोर्ट पेश कर देगी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन्होंने खिताब भी किया। To have another committee also overlooking into this crash and also the safety. So yesterday I've announced it before only that we are going to form another high-level committee before, and immediately we have constituted the committee also yesterday under the chairmanship of Home Secretary. And like our initial thought, we wanted to have experts in the committee from various sectors and not less than any joint secretary level. So accordingly, we have constituted the committee. We have circulated the order also of the high-level committee which is going to investigate this crash. So like I said, the Home Secretary is going to be the chairman of the committee. Secretary Ministry of Civil Aviation, Additional Secretary from MHA, one representative from the state of Gujarat where the incident actually happened, representative from State Disaster Response Authority, Government of Gujarat, Police Commissioner Ahmedabad, DG Inspection and Safety from the Indian Air Force, DG BCAS, which is the Bureau of Civil Aviation Security, DG DGCA, Special Director from IB, and Director from the Directorate of Forensic Sciences Services. So like you see, the composition of the high-level committee involves people from various backgrounds, and the people we feel who can bring in a lot of expertise and value to the committee, which is going to investigate in a holistic way into the incident. And we have put a time limit of 3 months for them to sit down, talk to various stakeholders, and involve and discuss with any other important expert that is necessary as per their investigation. And most of the issues that you feel there need to be answers, the committee is also going to. एयर इंडिया तैयारा हादसे में कई हिंदुस्तानी निजात बरतानवी शहरियों की भी जान गई। इसी में से एक रमेश के रिश्तेदारों ने अपने दुख का इजहार कुछ इस अंदाज में किया। He came here last Tuesday, 4th of June,
just for 9 days. He just wanted to come to eat fruit, jambura fruit. And yeah, he didn't come back home. What was the last conversation you had with him, if you can share? I didn't have here. This is the first trip where I've spoken to him 3 or 4 times within a week. But when he called me on Tuesday, video called me, I was working, and I thought I'd call him back. I'm calling back, and I never was able to because I just got busy with work. But my baby spoke to him yesterday. What is it? It's Saturday today. She spoke to him on Thursday when he boarded the plane. What was the conversation, if you can share? Thursday morning he rang me and then he said to me like, Kajal, everything is okay, weight is okay, everything is okay. And I said, that's fine, Dad, don't worry about it. And I even messaged on both, he had 2 phones with him, and I messaged him, Jai Shri Krishna, hello, make sure everything is okay with you and all your belongings are fine and safe journey, flight, everything. And then he said, I won't ring you again. I said, that's fine, you just relax, don't worry about it. I update everyone at home, like them, that you are safe in the plane. And then he still didn't think, and he just rang me again saying, I'm in the plane safely, he's on time and everything. I said, okay, that's a safe journey, and we see you in the evening. And day before, because I know he was coming, his favorite shak was tuenu shak, so I even made for him that he's coming, and he was looking forward to eat fish and chips as well that day, you know what I mean? He just came to have the fruit. Yeah, just for that. He came in January. He comes every year to India. He loves India. This is, and he's got a house in Gujarat, near Borsad. So him and Mum, they open the house and come here for 6 weeks to 2 months, have a tiffin service and just enjoy their And come back. weather here, because obviously in London it's cold during that time. And this time he just wanted to come back just to eat the fruit. That's why he said to us, everyone, that I'm going. I said, Dad, it's too hot to go, don't go. Mum didn't wanted him to go. And then he goes, tell Mum, can I go? I want to go. You know what I mean? I said, no, Dad, it's too hot. And then he said, no, I want to go. I said, okay, you just go. Full your wish, what you want to eat. You know what I mean? But he I don't know, he didn't come back. It was God calling. It was God calling him. He wanted to come here. He loved this country, and he died here. It was meant to be. It was meant to be. Air India has said that it will give the compensation to the family of the passengers. The compensation is not going to bring him be back. affected. I give the money, but give my dad. That's what I'm just saying anyway. But no one's going to give that. Money's not going to replace the life. Even yesterday when we were trying to get our booking to come here, Air India was an option, and I said, I'm not going on Air India. We can't lose 5 of us have travelled to come here to say our farewell. We've left up both our children. Both children are out by themselves. They're home as well. But they said, Mom. सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे गुजरात के अहमदाबाद में तैयारा हादसे में जख्मी अफराद और हलाक होने वालों के अफराद खानदान से मुलाकात करेंगे और हादसे के मुकाम पर सूरत हाल का भी जायजा लेंगे। कांग्रेस सदर दफ्तर से मौसूला इत्तला के मुताबिक कांग्रेस सदर और राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे आज शाम 4 बजे के करीब अहमदाबाद पहुंचे और तैयारा हादसे में मरने वालों को खिराज अकीदत पेश करते हुए बहरान की इस घड़ी में मुतासरीन के अफराद खानदान के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे सरकारी सिविल हॉस्पिटल में जख्मियों की इयादत के अलावा सोगवार खानदानों के अरकान को तसल्ली देने के लिए भी जाएंगे। कौमी सतह के मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट नीट के नतायज आज जारी कर दिए गए। महेश कुमार राजस्थान ने 99.9% मार्क्स हासिल करते हुए मुल्क भर में टॉप पोजीशन हासिल की। 22,70,000 से जायद तलबा तालिबात ने एंट्रेंस लिखा था। मुख्तलिफ वेबसाइट्स के जरिए स्टूडेंट्स अपना रैंक मालूम कर सकते हैं। राजा रघुवंशी कत्ल केस की तफ्तीश में तेजी आ चुकी है। इस मामले में खुसूसी तहकीकाती टीम यानी SIT ने मरकजी मुलजिम सोनम समेत 5 मुलजिमों से 25 घंटे तवील और गहरी पूछताछ की।
इत्तलात के मुताबिक एसआईटी ने मुलजिमीन से अलग अलग अंदाज में सवालात किए ताकि उनके बयानात में तजादात को परखा जा सके और हक़ाइक़ तक पहुंचा जा सके। तहक़ीक़ाती टीम ने 3 मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी हैं जो अलग अलग पहलुओं से मुलजिमीन से तफ्तीश कर रही हैं। पूछगछ के दौरान मध्य प्रदेश से जब्त किए गए शवाहिद और डिजिटल डेटा को भी बुनियाद बनाया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक तफ्तीश के दौरान सोनम से उसकी शादी और शादी से पहले के ताल्लुकात के बारे में तफसील से सवालात किए गए। एसआईटी ने इससे ये भी पूछा कि वारदात के दिन उसने कौन से कपड़े पहने थे, क्या वो बुरखे में थी या नहीं। मजीद ये कि सोनम और दीगर मुलजिमीन के बैंक खातों में पैसों के लेन देन से मुताल्लिक भी सवालात किए गए। सोनम और राज कुशवाहा के बयानात में कई नुकात पर वाज़े तजादात सामने आए हैं जिस पर एसआईटी खुसूसी तवज्जो दे रही है। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार को आगे रखकर बीजेपी फिर बिहार में इलेक्शन जीतने की कोशिश में है, जबकि हकीकत यह है कि बिहार के अवाम अब तब्दीली चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के अवाम रोजगार चाहते हैं और हमारी पार्टी तब्दीली लाने के लिए काम कर रही है। आइए देखते हैं ये बयान। किसी जाति के हों, किसी वर्ग के हों, वो बदलाव चाहते हैं, वो अपने बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार चाहते हैं। जितने कष्ट में लोग जी रहे हैं और इसके बावजूद विकल्प के अभाव में लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को जो वोट देना पड़ता है, पहली बार जनसुराज के तौर पर उनको अब एक विकल्प मिल गया है, एक रास्ता मिल गया है। जैसे पत्रकारों को बदलता हुआ दिख रहा है। प्रशांत जी कौन सी विधानसभा से खुद चुनाव लड़ेंगे? 243 की जिम्मेवारी है। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए इतनी सीट लानी है कि बिना डर के जनता के बात को लेकर ईमानदारी से काम किया जा सके। 5 साल में पूरी तरह से बिहार को बदल के रखना है। अगर बिहार को देश के सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल कराना है, उसलिए 243 चुनाव सीट पर लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जहां से जन पार्टी कह देगी वहां से लड़ेंगे। एक बार मुख्यमंत्री फिर बनेंगे, नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई रोक नहीं सकता है। किसने बोला है? एनडीए के लोग कह रहे हैं। मेरे भाई, एनडीए में 2 ही आदमी के बोलने का वैल्यू है। एक है प्रधानमंत्री मोदी जी और दूसरे हैं अमित शाह जी। आपके माध्यम से और साथ में एनडीए के सारे लोगों को चुनौती दे रहा हूं, अगर हिम्मत है तो नीतीश कुमार का नाम घोषित करें कि यही आदमी मुख्यमंत्री रहेंगे। 25 के बाद भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। आप अमित शाह जी के या मोदी जी के मुंह से सुनवा दीजिए, फिर हम मान लेंगे। मेरे भाई, इनकी हिम्मत नहीं है। भाजपा यहाँ पर वही गेम कर रही है जो महाराष्ट्र में किया है। नीतीश कुमार को आगे रखा है, सोचता है कि जनता को बेवकूफ बनाकर पहले वोट ले ले, उसके बाद जिसको मन होगा दिल्ली से किसी को अपॉइंट कर देगा। उम्मीदवारों की घोषणा नेताजी के चैम्बर में नहीं होगा, 2 करोड़ रुपया लेकर नहीं होगा। प्रशांत किशोर और हमारे दल के साथी गांव-गांव घूम रहे हैं, बड़ी सभाएं कर रहे हैं। जितने लोग संभावित प्रत्याशी के तौर पर काम कर रहे हैं, इसमें सबसे अच्छा कौन है आप बताओ, और जो भी जनता तय करेगी वही जनता का उम्मीदवार होगा। कोई जनसुराज में एक व्यक्ति नहीं है जो कि टिकटों का बंटवारा करेगा। क्या अदर पार्टी में टिकट के लिए पैसा लिया जाता है? आप इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, बिहार का कौन सा ऐसा दल है जहां पर आप ये नहीं सुनते हैं कि पैसा देकर टिकट लिया जाता है, दिया जाता है? ये कोई बात प्रशांत किशोर तो नहीं कह रहे हैं। ये तो बिहार का हर व्यक्ति जानता है कि बिहार में कुछ दल हैं, ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो कि पैसा ले देकर ही टिकट खरीदते बेचते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, राजनीतिक रणनीति बनाते हैं। हमने सामने ही कहा अपने भाषण। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने कहा कि केरला के निलंबूर असेंबली हलके के जिमनी इलेक्शन में कामयाबी के लिए हमारी कोशिशें जारी है। उन्होंने दावा किया कि कामयाबी हमारी ही होगी। Very well for the bypoll and we are very hopeful of a good victory in it. So I think everybody in our party, in the entire UDF, is fighting together. I'm very happy to see everybody is putting in hard work in every area. Everybody is camping here and I think we're going to do very well.
उधर हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन से मजीद 9 मरीजों की मौत हो गई, जिसके बाद इस वायरस से अमवात की जुमला तादाद 87 हो गई है और 269 एक्टिव केसेस के इजाफे के साथ ही फ़ाल केसों की जुमला तादाद 7400 तक पहुंच चुकी है। मरकजी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की तरफ से आज जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र में कोरोना इन्फेक्शन से 4, केरला में 3 और राजस्थान और तमिलनाडु में एक मरीज की मौत हो गई। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, केरला और मगरबी बंगाल जैसी रियासतों में सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं। वजारत सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक इस दौरान 11,967 मरीज कोरोना इन्फेक्शन से सेहतियाब हुए हैं। केरला इन्फेक्शन के लिहाज से सबसे ज़्यादा मुतासरा रियासत है। सरकारी अफसरान और माहिरीन सेहत ने आवाम से अपील की है कि वो मास्क पहने, बार बार हाथ धोते रहें और भीड़ वाली जगहों से गुरेज करें, ख़ासतौर पर उन इलाकों में जहां मामलों में इजाफा देखा जा रहा है और मौसमी वायरल बुखार के फैलने के साथ सेहत के पेशावर अफराद ने कोविड-19 को दूसरे इन्फेक्शन से अलग करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अंबानी खानदान को दी गई Z+ सिक्योरिटी के खिलाफ दायर दरखास्त को खारिज करते हुए दरखास्त गुजार को सख्त तंबीह की है। अदालत ने कहा कि खतरे की नौइयत और उसकी बुनियाद पर सिक्योरिटी फ्राहम करना हुकूमत का इख्तियार है और इसमें अदालत को मदाखलत करने का कोई इख्तियार नहीं है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस मनमोहन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त गुजार विकास पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने पिछले अदालती फैसलों के बावजूद दोबारा अर्जी दाखिल की, हालांकि पहले ही कहा जा चुका है कि उन्हें ऐसा कोई कानूनी इख्तियार हासिल नहीं है। अदालत ने इस दरख्वास्त को बेबुनियाद और परेशान कुन करार देकर खारिज कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में वाज़ेह किया कि सिक्योरिटी फ्राहम करने का फैसला हुकूमत खतरे के जायजे की बुनियाद पर करती है। सुप्रीम कोर्ट का इस अमल में कोई अमल दखल नहीं हो सकता। अदालत ने सवाल किया कि जब हम पहले ही कह चुके हैं कि आपको ऐसा कोई हक हासिल नहीं है तो फिर आपने दोबारा अर्जी क्यों दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा कि अगर खतरे की कोई खदशा है तो इसका अंदाज़ा लगाना हुकूमत का काम है, ना कि किसी फ़र्द या अदालत का। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को सख्ती से तंबीह करते हुए कहा कि अगर आइंदा ऐसा किया गया तो उस पर भारी जुर्माना आयद किया जाएगा। मणिपुर पुलिस ने 57.285 किलो मंशियात की एक बड़ी खेप जब्त की है। बैनुल अक़वामी बाजार में इसकी कीमत तकरीबन 22 करोड़ रुपये बताई गई है। पुलिस ने हफ्ते को ये इत्तला दी। पुलिस ने बताया कि गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान की गई कार्रवाई में इम्फाल से आने वाली एक ट्रक को इम्फाल मगरबी ज़िले के पुलिस स्टेशन के तहत पुलिस चौकी पर रोका गया। पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली और कार की छत के अंदर छुपा कर रखे गए मुश्तबा ममनुआ मवाद को कब्जे में ले लिया। नमूनों की जांच में मुश्तबा मवाद ममनुआ मीथाम फेटामाइन पाया गया। पुलिस ने आज इस मामले में मुलविस होने पर एक शख्स नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया। उधर ईरान की जौहरी तंसीबात और फौजी क़ियादत पर बड़े पैमाने पर हमले के जवाब में तेहरान ने जुमे की शब इसराइल पर दर्जनों मिसाइल दागे हैं। धमाकों की आवाज़ पूरे यरूशलेम में सुनी गई और मिसाइल हमले के बाद तल अबीब में धुएं के बादल उठते देखे गए। इतलात के मुताबिक कम से कम 3 इसराइली हलाक हो गए जबकि 60 के करीब अफराद जख्मी हुए हैं। पेश है नाजरीन ये तफसीलात। इसराइली फ़ौज ने कहा है कि दर्जनों मिसाइल दागे गए हैं और यह भी बताया कि मुल्क भर के रिहायशों को बम से बचने के लिए बनाई गई पनाहगाहों में जाने की हिदायत दे दी गई है। याद रहे कि सबसे पहले इसराइल ने ईरान के दारकूमत तेहरान पर हमले किए थे और मुल्क के जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया और कम से कम 2 आला फौजी अहदेदारों को लुक़्मे अजल बना दिया गया। जवाब में ईरान ने ये कार्रवाइयाँ की हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर ने कहा कि इसराइली हमलों में 78 अफराद हलाक और 320 से ज़्यादा जख्मी हुए। सफ़ीर अमीर सईद इरवानी ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में कहा कि इसराइल का वहशियाना और मुजरिमाना हमला और ख़तर आला फौजी हुकाम और एटमी साइंसदानों के खिलाफ है। मुतासिरीन में आम शहरी, ख़वातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद शामिल थी।
इसराइल बरसों से इस तरह के हमले से खबरदार करता है और अमेरिकी इंतजामिया ने बारहा इस हमले से रोकने की कोशिशें भी की। अमेरिकी इंतजामिया को खदशा था कि इससे पूरे मशरिक़ वस्ता में एक वसी और नया तनाज़ा जन्म लेगा। खित्ते के ममालिक ने इसराइल के हमले की मजम्मत की है, जबकि दुनिया भर के रहनुमाओं ने दोनों ममालिक से फौरी तौर पर कशीदगी खत्म करने का मुतालबा किया। इसराइली फौज ने कहा कि तकरीबन 100 अहदाफ पर इब्तदाई हमले में 200 के करीब तैयारे शामिल थे। 2 सिक्योरिटी एहलकारों ने बताया कि मुल्क की खुफिया एजेंसी मोसाद भी ईरान के अंदर धमाका खैज ड्रोन को बर वक्त पोजीशन में रखने और उन्हें तेहरान के करीब ईरानी अड्डे पर मिसाइल लॉन्चरों को निशाना बनाने के लिए फाल बनाने में कामयाब रही है। ईरान के बयान में कहा गया कि सहयूनी जारहियत के जवाब में मकबूजा सरजमीनों को शदीद मिसाइली हमलों का निशाना बनाया गया है। ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइलों ने तल अवीव समेत मुतादिद इलाकों में भारी नुकसान पहुँचाया। मकबूजा सरजमीनों के वसी इलाकों खासतौर पर शुमाली इलाकों में रेड अलर्ट भी जारी किया गया और सायरन की मुसलसल आवाज़ें सुनाई दी गईं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइलों के टकराने से तल अवीव के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद नुकसान पहुँचा है। ईरानी मिसाइलों से तल अवीव शहर लरज़ उठा और मुतादिद धमाकों की आवाज़ें भी सुनाई दी गई। सहयूनी महकमा सेहत के तर्जुमान ने हलाकतों और ज़ख्मियों की तादाद हालांकि बताने से फौरी इनकार किया, लेकिन कहा कि एम्बुलेंसों को मुतादिद इलाकों में भेज दिया गया है। ये भी कहा गया कि सहयूनी हुकूमत का एयर डिफेंस सिस्टम भी ईरान के मिसाइलों से मुकाबला करने में नाकाम साबित हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। और आखिर में फिर एक मरतबा नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एयर इंडिया तैयारा हादसे में अब तक 274 लोगों की मौत की तस्दीक हो चुकी। ब्लैक बॉक्स से हादसे की वजूहात का पता चलाने में मिलेगी मदद, वजीर शहरी हवाबाजी का बयान। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन से मजीद 9 मरीजों की मौत। वायरस से अमवात की जुमला तादाद 87 हो गई। माहिरीन ने एहतियात पर दिया जोर। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे अहमदाबाद में तैयारा हादसे में जख्मी अफराद और हलाक होने वालों के अफराद खानदान से कर रहे हैं मुलाकात। हादसे के मुकाम का भी करेंगे दौरा। राजा रघुवंशी कत्ल केस की तफ्तीश में आई तेजी। एसआईटी ने मरकजी मुल्जिम सोनम समेत 5 मुल्जिमों से 25 घंटे तवील पूछताछ की। और ईरान ने इसराइल पर दर्जनों मिसाइल दाग दिए, 3 इसराइली हलाक, लगभग 60 जख्मी। तल अवीव में खौफ और दहशत का माहौल। खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मन्नान जाबरी को सियासत टीवी की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।